Now we'll talk about atoms. Now, student, atoms. एटम की सबसे पहली जो डिस्कवरी हुई थी दैट वाज इन इंडिया. दैट वाज डन बाय महर्षि कानन. ही नेम्ड दैट कॉल्ड परमाणु. अकॉर्डिंग टू महर्षि कानन, एक परमाणु अपने आप में न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा. बट यस, ये बात सही है. वी वर नॉट इंडिपेंडेंट. तो उनकी थ्योरी को, उनके नेम को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिली. तो हमारी बुक्स के अंदर लिखा होता है जे थॉमसन. बट एक्चुअली में एटम की फर्स्ट डिस्कवरी महर्षि कानन ने की है, जिन्होंने परमाणु बोला था. बट कोई बात नहीं. हमारा ये चैप्टर डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से शुरू होता है, बिल्कुल बेसिक्स, बेसिक थ्योरी, दैट इज डेल्टन थ्योरी. बेटा राइट डाउन डेल्टन थ्योरी. This is the most fundamental theory in the field of atom. Write down. First point. Every material is composed of every material is composed of minute particles, minute particles known as atom, known as atom. Second point. Atom is atom is indivisible. Atom is indivisible. That is it cannot be subdivided. That is it cannot be subdivided. Next point. Atom cannot be created, cannot be destroyed. Atom cannot be created, cannot be destroyed. Next point. All the atoms of same element, all the atoms of same element are identical, physically as well as chemically, whereas atoms of different elements, whereas atoms of different elements are different in properties. Atoms of different elements are different in properties. Next key point. The atoms of different elements, the atoms of different elements are comparable to hydrogen atom, are comparable to hydrogen atom, that is the radius of heaviest atom, the radius of heaviest atom is about 10 times, that of hydrogen atom, and its mass is about 250 times of hydrogen atom, Okay.
बेटा ये डेल्टन के 5 पॉइंट्स रीड कर लो, और अगर इसमें कोई भी इशू है तो अभी बात करो। हाँ जी, ये 5 पॉइंट्स रीड कर लिए। यस सर। ओके, इसमें कोई इशू? नो सर। ओके बेटा, ध्यान से देखो, डेल्टन ने कभी भी ये नहीं बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, उनकी क्वांटिटी है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यस। नेक्स्ट मॉडल है जे जे थॉमसन मॉडल। बेटा जे जे थॉमसन मॉडल जिन्होंने कहा था कि एटम एज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन एटम के बारे में बात करनी तो सबसे पहले डेल्टन ने शुरू करी थी। हाँ, ये अलग बात है, डेल्टन ने कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में डिस्कशन नहीं की थी। तो अब डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद लिखे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, द एटम एज अ होल इज, द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज, दैट इज total positive charge present in an atom, total positive charge present in an atom is equal to, is equal to total negative charge present in an atom. Okay, next point, J J Thomson, J J Thomson, on the basis of oil drop experiment, on the basis of oil drop experiment, also stated, also stated, also stated, atom, atom size is about, size is about 10 की पावर -10 मीटर, in which, in which positive and negative charges are embedded. बच्चे जब आप न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर -15 मीटर होता है, एटम का साइज 10 की पावर -10 मीटर होता है। हम न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर ये बात स्टडी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सी पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज, the positive charge and whole mass, and whole mass of the atom is uniformly distributed as seeds in pumpkin,
and equal negative charge is spread. This model was also named as, बेटा जे थॉमसन मॉडल को किस किस नाम से बुलाया जाता है? Pudding model. This model is also named as pumpkin model, watermelon model, plum pudding model. Okay. Limitation of Thomson model. बेटा थॉमसन मॉडल ने कभी भी हमें ना एग्जैक्ट शेप, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं बताई थी। बेटा फर्स्ट लिमिटेशन लिखें जे थॉमसन मॉडल की, राइट डाउन। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, द स्पेक्ट्रम of atom cannot be explained, cannot be explained with the help, cannot be explained, second, scattering of alpha particles cannot be explained. Next, exact shape of atom was not explained. Next, energy spectrum, band spectrum, color spectrum, spectra was not explained. Okay, इसको लिख लीजिए। लिख लिया। ओके, थर्ड मॉडल कौन सा था? फर्स्ट इज डेल्टन, सेकंड इज जे थॉमसन, थर्ड इज Rutherford. रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। इसका एक और नाम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इसका एक और नाम, जो थर्ड नाम है वो यूजुअली बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। बेटा इसका थर्ड नाम है गीगर एंड मार्शल एक्सपेरिमेंट, Yes. राइट? ओके, नाउ इसका एक और नाम भी होता है गीगर एंड मार्शल एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, कुछ आप बताएंगे क्या था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? एनी आइडिया? Alpha particles है। क्या बेटा? बोलिए। और अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड की वो थिन फॉइल, हम्म, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व किया था कि अ, कैसे ये कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे उस हम्म, लाइट। वेरी गुड।
बेटा अल्फा पार्टिकल का कोई एक सोर्स का नाम बताइए। करेक्ट, वेरी गुड। ये अल्फा पार्टिकल को ये जिस कंटेनर में रखा, ये कंटेनर किससे बना हुआ था? लेड कंटेनर। व्हाई लेड कंटेनर? व्हाई नॉट सम अदर कंटेनर? बेटा अल्फा पार्टिकल की बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, मतलब वो क्रॉस करके निकल जाता है। इट्स अ वेरी हाई हाई पेनिट्रेशन पावर। अगर इतनी हाई पेनिट्रेशन पावर है कि वो उसको किसी ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा, तो जिस भी वेसल के अंदर आप इसे रखोगे, अल्फा सोर्स उसके अंदर से पास बाय कर जाएगा। लेकिन लेड एक ऐसा मेटल है जो अल्फा सोर्स को अपने अंदर से पेनिट्रेट होने नहीं देता है। इसीलिए वी यूज लेड कंटेनर। और यहां से हम बिल्कुल नैरो स्लिट रखते हैं। नैरो स्लिट रखने का पर्पस क्या होता है कि आपके पास यहां से जब अल्फा सोर्स निकले तो एक बीम की फॉर्म में निकले। अब ये स्लिट्स का क्या मतलब होता है? स्लिट्स क्यों लगाई जाती है बीच में? स्लिट्स बेसिकली एक ऐसा टनल जैसा मान लो आप, कि एक बहुत नैरो ओपनिंग के साथ यहां से अल्फा पार्टिकल जा रही है। बेटा अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस लेड कंटेनर से बाहर आएगी, इसका नेचर है कि ये कहीं पे भी डेविएट कर सकती है। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम पूरे पाथ में लेड का एक टनल जैसा मान लो कि हम, ताकि उसमें से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकले और वो पूरा स्कैटरिंग नहीं हो। अब आगे जाके हमने इसमें लगाया एक गोल्ड फॉइल। बेटा अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी याद करते हो, वहां पे आपने एक पढ़ा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली हम गोल्ड की ही शीट क्यों लेना प्रेफर करते हैं? व्हाई नॉट अदर मेटल्स? हाँ, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है उसको काफी मलिएबल होता है। नाइस, वेरी गुड। बेटा इतना मेलेबल होता है कि आप एटॉमिक लेवल पे जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि आप कोई और मेटल ले नहीं सकते। वी प्रेफर गोल्ड, यस। बट वी कैन टेक अदर मेटल्स ऑल्सो। गोल्ड इज हाईली मेलेबल, मतलब वो इतना थिन किया जा सकता है कि आपके पास हम एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम गोल्ड प्रेफर करते हैं, बट दूसरे मेटल्स भी यूज कर सकते हैं। क्या बात क्लियर है? यस सर। यहां से अल्फा सोर्स, अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से निकले, तो उसके बाद कुछ अल्फा सोर्स इधर मूव हुए लाइक दिस, ऐसे। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे भी गए। और यहाँ पे हमने लगाई एक स्क्रीन। ये थी फ्लोरोसेंट स्क्रीन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसेंट स्क्रीन? सर जो जब अल्फा पार्टिकल इस पे हिट करते हैं तो ये थोड़ा सा लाइट दिखाते हैं। यस, ग्लो करती है। ग्लो करती है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन इट। अच्छा, तो ग्लो करती है तो ये बनी किससे बन होती है? ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन किस मटेरियल से बनी होती है? जिंक का कोई। ZnS। जिंक सल्फाइड। तो ये यस। बनी होती है जिंक सल्फाइड से। अब पहले इस डायग्राम को बना लो, फिर इस पे बात करते हैं।
डायग्राम बना लिया? यस। ओके फाइन. नाउ विल टॉक अबाउट, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्टुलेट. बेटा ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखी थी? मैक्सिमम एल लिखो, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट विदाउट डेविएशन. इससे हमें क्या पता चला? What we come to know? Most of the space, Space inside yes, atom is empty. Most of the space in the atom is empty. Okay. Next, few alpha particles show small deviation and even few show large deviation. Right? इससे क्या पता चला? न्यूक्लियस के बारे में। इससे ये पता चला था कि कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हो गए, देन हाउ ही कुड कंक्लूडेड कि एटम के अंदर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है? हाउ ही कुड कंक्लूडेड दैट? अल्फा पार्टिकल भी एक मतलब रिपल्शन की जगह। करेक्ट. मान लो अल्फा पार्टिकल्स आर इटसेल्फ पॉजिटिव. पॉजिटिव। करेक्ट. इटसेल्फ पॉजिटिव. आपके पास एटम के अंदर उनको ये बात कैसे श्योरिटी होगी कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है? वाई कुड नॉट ही से कि एक पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है? जो कि जेजे थॉमसन ने यही तो कहा था कि अल्फा की एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है. क्योंकि अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से ऐसे डेविएट कर गए, देन हाउ कुड ही कंक्लूड कि नहीं नहीं जेजे थॉमसन गलत बोल रहे हैं, स्कैटर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड है? हाउ ही कुड कंक्लूड दैट? सो क्योंकि पहले पोस्टुलेट में ही लिखा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। हाँ ठीक है, कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले गए. माय क्वेश्चन इज, अगर कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट हो रहा है और जेजे थॉमसन इनसे पहले कह चुके थे कि पॉजिटिव चार्ज जगह जगह पे प्रेजेंट हैं, जब इनको दिखा कि अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट हो गए, तो ये उन्होंने जेजे थॉमसन के उस पोस्टुलेट को गलत कैसे बोल दिया? इतना श्योर वो कैसे हो गए कि पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड नहीं है, एक्यूमुलेटेड है? हाउ ही कुड श्योर दैट? लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है. तो इन्होंने ये क्यों बोला? अब इन्होंने एक चीज कही है कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, नेगेटिव चार्ज स्कैटर्ड है. ये कैसे हो गया? अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं. जैसे ही अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए, इन्होंने जेजे थॉमसन में ने जो दो बातें कही थी कि पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है और इक्वली नंबर नेगेटिव चार्ज भी स्कैटर्ड है. नाउ ही सेज कि पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड नहीं है, वो एक्यूमुलेटेड है. नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं है. यस, टेल मी.
आपको मेरा क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हम्म, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओके, लेट मी टेल यू। बेटा, अल्फा पार्टिकल इज कैरिंग कैरी एनर्जी। ये एनर्जी बीम है। यस, यस। इसके पास एनर्जी है। बेटा, अल्फा पार्टिकल हैवी माना जाता है। बेटा, अल्फा यस। पार्टिकल मतलब हीलियम 2 4, ये हैवी है। आपके पास किसी और इसके पास हाई पेनिट्रेशन पावर भी है। हाई यस। पेनिट्रेशन पावर भी है इसके पास। बेटा, अल्फा पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट करने में एक हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। मान लो आप एक टॉय कार से खेल रहे हो, और टॉय कार आपके घर के फ्लोर पे चल रही है, आपने फिंगर लगाई और टॉय कार हिल गई। लेकिन सोचो, जब रियल कार या रियल ट्रक रोड पे चलते हैं, तब आप अपने हाथ से उसको धक्का मार के नहीं हिला सकते। आप उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते जस्ट बाय पुलिंग इट। तो अगर फिर भी आपको उसको पुल करना है या उसको डायरेक्शन चेंज करनी है, देन यू मे रिक्वायर क्रेन, देन you may require some heavy vehicle, you may require some bulldozer। आपको कोई ऐसा हैवी मशीनरी चाहिए होगी जो इतने हाई मास बॉडी को अपने पाथ से डेविएट कर दे। एम आई राइट? यस। बेटा, अल्फा पार्टिकल आर मैसिव। अल्फा पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट करने के लिए एक हाई इनपुट एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, वरना वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है, मतलब उसकी एनर्जी स्कैटर्ड है, तो वो अल्फा पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट नहीं कर सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। अगर अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हुई है, तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही हो सकता था। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता तो वो अल्फा पार्टिकल को अपने पाथ से डेविएट नहीं करवा सकता था। तो अगर अल्फा पार्टिकल डेविएट हुई है, तो दैट मीन्स उसको डेविएट कराने में एक हाई रिपल्सिव फोर्स किसी ने दिया होगा, और वो हाई तभी हो सकता है जब सारा पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे एक्यूमुलेटेड हो, ना कि स्कैटर्ड। क्या बात क्लियर है? यस। ओके, यस। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने कहा कि जो डेविएशन हुई है वो पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज की वजह से हुई है। मतलब पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में रिपल्शन हुई, जिस वजह से डेविएशन हुई। राइट? यस। हम इसको ऐसा नहीं सोच सकते थे कि लेटस से नेगेटिव चार्ज अपनी जगह पे एक्यूमुलेटेड है, लेटस से नेगेटिव चार्ज यहाँ कहीं पे एक्यूमुलेटेड है इस जगह पे। यस। अब जो अट्रैक्शन हुई वो एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से हुई, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट कर गई। ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हम? रदरफोर्ड सेड कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं है। उसके लिए उन्होंने आर्गुमेंट्स दिया कि पॉजिटिव चार्ज अगर एक्यूमुलेटेड नहीं होगा तो वो अल्फा पार्टिकल को डेविएट नहीं कर सकता। अच्छा, यस सर। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड रहा होता, तो जिसने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा होता। इस चीज को लेके वो इतना श्योर थे कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और इस चीज को लेके श्योर है कि डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो डिफ्लेक्शन हो रहा, डेफिनेटली एक रिपल्शन की वजह से होगा। मान लो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, मान लो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, राइट? यहाँ पे बीच में एक हाई पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल यस। किया, जिस वजह से अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट कर गया। राइट? ओके, थिंक अदर वे राउंड। यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा था,
ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड था, तो पॉजिटिव गेट्स अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नहीं है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ओके, लेट मी टेल यू। बेटा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, राइट? यस। करेक्ट सर, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा था, और मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड था। एज्यूम करते हैं नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड था। तो जब वो अल्फा पार्टिकल आ रहा था और वो नेगेटिव के साथ यहाँ पे मर्ज हुआ, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो चुका होगा। अब अगर यहाँ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस अचीव हो गया है, तो इसके आगे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, वहां पे अल्फा पार्टिकल नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन तो उससे पहले हो ही चुका है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिसीव नहीं होगा। यस। बट व्हेन ही जस्टिफाइड, व्हेन ही ऑब्जर्व, तो उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जिंक प्लेट पे, जिंक सल्फाइड की प्लेट पे रिसीव तो हो रहे हैं। वी आर गेटिंग अल्फा पार्टिकल ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट्स। मतलब बीच में कहीं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो नहीं हुआ है। और अगर बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ है, मतलब ये जो डेविएशन है, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से तो नहीं हुई है। तो ये डेफिनेटली किसकी वजह से हुई है? स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से हुई है। यस। इसीलिए ये कंक्लूड कर पाए कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है और नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड नहीं है। क्या बात समझ आई? यस। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज कि जब अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, तो 1 आउट ऑफ 8,000, ये हर बुक में अलग अलग डिजिट लिखी हुई है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated by 180 डिग्री, राइट? और ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी, 180 डिग्री वाली। और इसी पे ही हमारी नेक्स्ट क्लास डिपेंडेंट है, जहाँ पे बहुत सारे हमने कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस भी करनी है जस्ट ऑन दिस। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस में से एक थी, जहाँ पे 180 डिग्री में डेविएशन हुआ था। इसको लिख लो पहले। यस।